Hello students, today we are going to see class 7 chapter number 4 exercise 4.3 question number 1. Solve the following equations. In this you have to solve the following equations in which you have to find out the value of y. So let's begin. Question number 1, let's solve it. सी दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सी यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि LHS में अगर आपको कोई भी वेरिएबल या RHS में कोई भी वेरिएबल दिया है तो उस वेरिएबल को अगर आपको फाइंड करना है तो व्हाट यू हैव टू ब्रिंग वॉट एवर इज़ अटैच्ड ऑन टू द अदर साइड. मतलब कोई भी चीज़ जो अगर आपकी अटैच है उसको हमें दूसरे साइड लेके जाना. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2y के साथ क्या अटैच है, 5/2 इज़ अटैच, तो उसे हम दूसरी साइड लेके जाएंगे. सो सी दिस इज़ माई LHS, दिस इज़ माई RHS. LHS से हम क्या करेंगे, 5/2 को इस साइड भेजेंगे. सो क्या हो जाएगा, 2y 37/2. दिस प्लस 5/2 विल गो टू द अदर साइड, इट विल बिकम माइनस 5/2. देन 2 एज इट इज़. when the denominators are same you just have to do the operations in the numerator. 37 minus 5, that is 32, and here it will be 2y. Here it will be what, 2y. Now see, nothing is there in the denominator, so it is 1. Now what you can do, you can do cross multiplication. So 2 2s are 4y, 32 1s are 32. See, this I have explained in the last video, that what you have to do is, when here it is no denominator is given, you have to apply 1 and then you have to do cross multiplication. Y is equal to 32 upon 4, 4 8s are 32. So value of y is what, it is 8. 4 will go down and it will be divided, so 4 8s are 32. So what is the answer, y is equal to 8. Now let's see the second question. See, second question is 5t plus 28 is equal to 10. This is my second question. Here I have to find out the value of t, which is the unknown. So to find out the value of t, we will send this plus 28 to the other side. 10 minus 28. 10 minus 28 is 18, but the sign of minus will be coming because the bigger number is 28. So minus 18 and 5t as it is. Therefore t का वैल्यू फाइंड करना है, so 5 will go down. Then what you have to do, you have to divide it. So we will divide it, and after dividing what will be getting, a mixed fraction we will be getting. 5 3s are 15. 18 minus 15, how much left, 3, and minus will be appearing because here it is minus. So this is the value of t. T is equal to minus 3 whole 3 upon 5. Now let us see for the C question number C. A upon 5 is plus 3 is equal to 2. A upon 5 plus 3 is equal to 2. See, here जो प्लस 3 अटैच है वो हमारा दूसरा साइड चला जाएगा. A upon 5 is equal to 2 minus 3. Fine. Then A upon 5, 2 minus 3 is minus 1 upon 1. Then cross multiplication. A 1s are A, minus 5 1s are minus 5. Let us move to the next question, that is q upon 4 plus 7 is equal to, therefore q upon 4, 5 minus 7. q upon 4, 5 minus 7 is minus 2 upon 1. Cross multiplication. q 1s are q, 4 2s are 8. बट द साइन ऑफ माइनस विल बी अपेयरिंग. देखो यहाँ पे अगर माइनस होता तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाता, क्योंकि 2 माइनस होते, एंड इफ़ 2 माइनस आर देयर इट विल बिकम प्लस. लेकिन यहाँ पे एक ही माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा.
तो q का वैल्यू आपका कितना आएगा, -8 आएगा. फाइन. नाउ let us see the E1. What is question number E? 5/2 x. सी अगेन यहाँ पे सेम चीज़ है, डिनोमिनेटर नहीं दिया तो हम 1 लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. नाउ सी दिस x इज कनेक्टेड विथ 5x 1 ज़ा 5x एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन हमारा किसके साथ होगा, -10 के साथ. सो 2 × -10 इज -20. Therefore you have to find out the value of x. So x is equal to -20/5. 5 will go down. 20 divided by 5 is 4, but the sign of minus will come because only one minus is there. So -4. X is equal to -4 is your solution. So these sums are very easy and they are mark scoring. Let's move to the next question. 5/2 x is equal to 25/4. Now see again you have to do the cross multiplication. 5 4s are 20x, 25 2s are 50. X is equal to 50 divided by 20. So 0 and 0 cancel. 5 divided by 2. It will be converted into a mixed fraction. How to convert in mixed fraction? 2 2s are 4, 1 left. So this will be your value of x. Let us see the next question, that is 7m is equal to 7m plus 19/2 is equal to 13. ओके इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो 7m के साथ प्लस 19/2 कनेक्टेड है, इसको हम अदर साइड भेजेंगे. सो प्लस 19/2 विल बिकम -19/2. सो किस तरीके से करेंगे, 7m is equal to 13 minus 19/2. Now in this kind of sums you have to take the LCM. You need to take the LCM. तो LCM ले लेंगे हम यहाँ पे. Therefore 7m is equal to, see here no here, it means it is 1. Now you take the LCM of 1 and 2. It is what? It is 2. जब कोई भी नंबर का LCM आपको 1 के साथ लेना हो तो वही नंबर आपको LCM मिलेगा. Now in ones table when 2 is coming, 1 2s are 2. अब वो जो 2 आया उसका मल्टीप्लिकेशन आपको न्यूमरेटर के साथ करना है. 1 2s are 2, 2 13s are will be coming here. माइनस 2 के टेबल में 2 कब आता है, 2 1s are 2, 1 19s are 19. 7m is equal to 13 2s are 26 minus 19/2. 26 minus 19, 7/2, and here it is 7m. No denominator is there, so it is 1 cross multiplication. 2 7s are 14m, 7 1s are 7. Now you have to find out the value of m. So 14 will go down. 7/14. 7 1s are 7, 7 2s are 14. So value of m is half, or you can say 0.5. So this is how you have to do this sum. When no denominator is given, you have to assume 1 and then you have to take the LCM. LCM लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 2s are 2, 2 multiply 13, that is 26 minus 19/2. 26 minus 7/2. Then क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है एंड सिंपली यू विल गेट द आंसर. फिर तो वही स्टेप्स हैं जो हम प्रीवियस सम्स में कर रहे हैं. नाउ लेट अस सी द H1. सी जैसे जैसे आप सम्स करोगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको अपने आप ही आ जाएगा. देखो 6z plus 10 is equal to -2. So how to do this? This is also very easy.
-2 तो हम एज इट इज़ रहने देंगे, +10 को हम RHS में भेजेंगे, तो इट विल बिकम -10, -2 -10 इज -12 एंड 6z एज इट इज़। देयर फॉर z का वैल्यू फाइंड करना है। सी ये अब आपको आ जाना चाहिए, -2 -10 इज -12 बिकॉज माइनस माइनस प्लस 10 + 2 इज 12 एंड द साइन ऑफ माइनस। z इज इक्वल टू -12/6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, -2। वैल्यू ऑफ z इज -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3t/2 इज इक्वल टू 2/3। आई थिंक सो हियर L इज गिवन। ओके, सो L ले लेते हैं। कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, उसकी वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अभी इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो देयर फॉर 3 3 ज़ा 9L, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9L, 2 2 ज़ा 4। अभी L का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4/9। अब 4/9 तो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, बट हियर इट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, सो कुछ भी नहीं होगा। एंड ये रिड्यूस्ड है, अपने आप में रिड्यूस्ड है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। दिस इज़ ओनली अवर आंसर, क्योंकि ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, इसको आप कट भी नहीं कर सकते हो। जे 2b/3 - 5 इज इक्वल टू 3। नाउ लेट सी, यहाँ पे हम /1 लगा देंगे। देयर फॉर अगेन ओके, इट इज़ बेटर यू डू वन थिंग, यू टेक दिस -5 हियर, 3 + 5। ओके, इसमें आप /1 नहीं लगाओगे तो चलेगा। ओके, फर्स्ट आई वॉज थिंकिंग टू टेक द LCM, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। इससे बेटर है कि जो इंडिविजुअल नंबर्स आपको दे रखे हैं उनको आप साथ में ले लो और उनका जो भी है ऑपरेशंस प्लस माइनस वॉट एवर इज़ देयर वो आप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल हो जाएगा सम। 3 + 5 कितना होगा, 8 /1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब ये ईजी हो जाएगा हमारा, 2b 1 ज़ा इज़ 2b। और यहाँ पे ठीक है ना, 8/1 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 8 3 ज़ा इज़ वॉट 24 हो जाएगा। देयर फॉर b इज इक्वल टू 24/2 एंड दैट इज़ 12। सो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12। सो द वैल्यू ऑफ b इज़ वॉट 20, b इज इक्वल टू 12। सो सी ये जो सम्स हैं इसमें बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी दिया है और उसके साथ कोई भी टर्म अटैच है तो हम वो पहले RHS में सेंड करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और अगर जहाँ पे आपको LCM लेने की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे आपको LCM लेना है, उसको सॉल्व करना है और उसके बाद अगेन क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो दीज सम्स आर वेरी ईजी, you can 110% secure good marks in these kind of questions. I hope everybody understood this video, and if any doubts are there you can comment me in the comment section. Thanks.